As I was saying that Nehru is being demonized today. उनका दैत्यकरण किया जा रहा है through the WhatsApp universities, through the social media that you are aware of, as well as by the speeches and sayings of elected leaders, major elected leaders that of the regime in power today. Lies, abuse are spread about Jawaharlal Nehru through a propaganda machinery. इस किस्म का दुष्प्रचार किया जाता है कि हैरानगी होती है. He is shown as responsible for all the evils of this country, whether it be poverty, whether it be the problem of Kashmir, of China, of Goa, of lack of primary education, any problem that we have today. As you hear almost every day from political leaders, the responsibility goes back to Jawaharlal Nehru. One of the abuse, interestingly, is that Jawaharlal Nehru asli mein Musalman the. If you watch social media, you will find so many stories about his parentage, about being Muslim, this, that, and the other. As if Musalman hona koi gunah hai. The very abuse itself tells you of the mentality of the people who are abusing Jawaharlal. But this is not only at the social media level. The ICHR, the premier institution which is to guide the discipline of history, the Indian Council for Historical Research, they were in a poster which was to celebrate the 75th year of India's independence. They put the pictures of various leaders, Mahatma Gandhi, Subhash Bose, etc. And they forgot to put Jawaharlal Nehru's photo on that poster. And instead, they put the poster of Savarkar, a person, as you know, who repeatedly asked for forgiveness from the British, who unse माफिया मांगी बहुत बारी और अंग्रेजों के भत्तों पर जिए. He took money from them to survive, and after coming out of prison, played a politics of collusion with the British rather than fighting with the British. His photograph comes in, and that of Jawaharlal Nehru is removed. I'm starting with this because so that when we talk about the positive part, you realize that how important it is to remember the positive part. Things have gone so bad that one leader of the current political party, and this was reported in an RSS journal, actually said that Godse made a mistake. He should have shot Jawaharlal Nehru. He was the greater evil. Jis tarah, the manner in which the abuse of Nehru occurs was not even done by the British. The British against whom Nehru fought for 30 long years, from about 1915 till independence. And out of that 30 years, 9 years he spent in jail. This is not mentioned when you hear this propaganda about Jawaharlal Nehru. जिस तरह से अंग्रेजी सांप्रदायिक ताकतों ने नेहरू को कभी नहीं गालियां दी, उससे बहुत ज्यादा गुना गालियां जो है हमें अब सांप्रदायिक ताकतों से नेहरू को दी जा रही हैं. आपको ये याद रखना बहुत जरूर है कि सांप्रदायिकता जो है वो साम्राज्यवादी हुकूमत के अंडर ग्रो किया है, ये उनके सपोर्ट से ग्रो किया है. इन दोनों की पार्टनरशिप थी. हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय में अंग्रेजी हुकूमत ने सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने के लिए सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया. उनका एक अम्बिलिकल कॉर्ड का लिंक है, गर्भनाली का संपर्क है. ये हमको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिकता कई बारी राष्ट्रवाद के नारों पे वापस आने की कोशिश करता है. पर आपको याद रखना चाहिए कि राष्ट्रवाद के साथ सांप्रदायिकता का कोई रिश्ता नहीं था और ना है, क्योंकि सांप्रदायिकता राष्ट्र को तोड़ती है. टू कम बैक टू नेहरू, अगर नेहरू इतने ही खराब थे जितना कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया, तो हमें ये सोचना चाहिए that why is it that Mahatma Gandhi, the father of the nation,
chose Nehru as his successor. I'll quote you from a speech that Mahatma Gandhi gave at the AICC in 1942 on 25th January, in which he makes this comment that Nehru will be my successor. I'm quoting him. He says, somebody suggested that Jawaharlal Nehru and I were estranged. This is baseless. You cannot divide water by repeatedly striking it with a stick. अब पानी, गांधी जी बहुत इडियोमैटिकली बात करते थे, वो कहते पानी को आप बार बार डंडा मार के नहीं उसको डिवाइड कर सकते। तो वैसे ही रिश्ता जो मेरा नेहरू के साथ है उसको आप डंडा मार मार के नहीं तोड़ सकते। ये बात याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में, इस समय, द मैनर इन विच आवर नेशनल मूवमेंट इटसेल्फ is being trivialized, is being demonized, not Jawaharlal Nehru himself. नेशनल मूवमेंट का ही मजाक बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन का मजाक बनाया जा रहा है, और ये बताया जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो सारे लीडर थे वो एक आपस में ही लड़ते थे। नेहरू सुभाष बोस से लड़ रहे थे, गांधी नेहरू से लड़ रहे थे, नेहरू गांधी से लड़ रहे थे, भगत सिंह गांधी से लड़ रहे थे, पटेल और नेहरू की लड़ाई थी। आपको लगेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे लीडर जो आपस में लड़ाई ही करते रहते थे। ये जो एक मानसिकता फैलाई जा रही है, ये इसके पीछे ये आइडिया है कि नेशनल मूवमेंट को ही आप रिड्यूस कर दो, क्योंकि उस मूवमेंट में सांप्रदायिक ताकतों का कोई हाथ नहीं था, इसलिए उस मूवमेंट का ही मजाक बना दिया जाए। एक झटके में उनको सबको भिखारी बना दिया, ये कह के कि हमें आजादी भीख में मिली। भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब भिखारी थे, क्योंकि आपने कहा हमें तो आजादी भीख में मिली। असली आजादी तो आपको पता ही कब मिली, 2014 में, उसके पहले तो आजादी नहीं मिली थी। ये सिर्फ स्टारलेट, ये जो है क्या नाम, कंगना राउत वगैरह, ये लोग नहीं कहते हैं। अगर वही लोग कहते रहते तो हमें नहीं कोई परेशानी नहीं थी। ये सीरियस कॉन्वर्सेशन में आ जाता है। इलेक्टेड लीडर्स जब ऐसी बातें करते हैं तो तब हमको इतिहास में वापस जाना जरूरी है। अब आते हैं महात्मा गांधी के स्पीच पर। वो क्या कहते हैं? As I said, you cannot divide water by repeatedly beating it with a stick. It is difficult to divide us. और ये जो है ना, ये मानसिकता कि एक लीडरशिप के अंदर डिविजन्स हो सकते हैं, परंतु डिविजन्स और डिफरेंस होने के बावजूद भी वो इकट्ठा काम कर सकते हैं, ये जो आजकल के कई जो पेटी लीडर्स हैं उनके दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं सकती। जवाहरलाल नेहरू ने एक पूरी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दी, एक पूरी किताब जो महात्मा गांधी की क्रिटिक था। Yet, as Gandhi says, they could work together. ये जो सुभाष बोस के इतने डिफरेंसेस हुए कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के उन्होंने दूसरी पार्टी बना दी, पर जब उन्होंने आईएनए बनाया तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने ब्रिगेड्स के नाम क्या रखे? गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड। और उन्होंने अपने सोल्जर्स को कहा कि जब भारत आप पहुंचोगे, भारत के सॉइल में, तो कमांडर इन चीफ आपका मैं नहीं होऊंगा, महात्मा गांधी होंगे। ये होती है लीडरशिप। आप उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, इस लेवल के लीडर्स को। तो हमें समझना जरूरी है, यंग पीपल को, कि हम किस स्तर के लोगों की बात कर रहे हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके सामने एक वन ऑफ अ टॉलेस्ट लीडर्स के बारे में कुछ बताऊं। तो गांधी जी कहते हैं, आई हैव ऑलवेज सेड that not Rajaji, that is not C. Rajagopalachari, not सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम लेके कह रहे हैं क्योंकि ये इनके महात्मा गांधी के बहुत क्लोज थे और वो बहुत, they were very tall leaders, highly educated, very tall leaders. वो कहते हैं not Rajaji, not सरदार वल्लभ भाई पटेल, but Jawaharlal will be my successor. When I am gone, he says, he will speak my language. और फिर मैं थोड़ी पूरा लेटर नहीं बता रहा हूं, आखिर में वो कहते हैं, even if this does not happen, that is, even if Jawaharlal does not speak my language after I die, I would at least like to die with this faith. Now, what was it about that Jawaharlal कि गांधी जी कहते हैं कि उनको अंतिम तक ये विश्वास है कि मरने के बाद भी कि जवाहरलाल मेरी भाषा में ही बोलेगा। Why did the father of the nation have this faith in Jawaharlal? इसके दो कारण हैं मेरे हिसाब से।
पहला कारण यह है that Jawaharlal Nehru quintessentially represented all the values of the freedom struggle. हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जो मौलिक अवधारणाएं थी, जो उनकी जो एक परिकल्पना थी कि आजाद भारत क्या बनेगा, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने आइडिया ऑफ इंडिया कहा, तो उसमें गांधी जी का विश्वास था कि उस परिकल्पना को आगे बढ़ाने में जवाहरलाल नेहरू अहम रहेंगे, नंबर 1 पे रहेंगे. एंड व्हाट वर दोज वैल्यूज ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया? क्योंकि सभी आज आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, पर लेट मी क्विकली फॉर यू इन 3 मिनट्स डिफाइन व्हाट वाज द आइडिया ऑफ इंडिया, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू लड़े. और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इस पे एक कंसेंसस था. ये नहीं था कि ये सिर्फ गांधी जी का या नेहरू जी का आइडिया था. इस अभी जो मैं डिस्क्राइब करूंगा, जो 5-6 एलिमेंट्स ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया, इसमें सब भगत सिंह, गांधी, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, सुभाषाइट्स, पटेल, हर एक की इसमें सहमति थी. सिर्फ जो सांप्रदायिक थे या जो लॉयलिस्ट थे, अंग्रेजों के जो सपोर्टर थे, उनके सिवा सारी नेशनलिस्ट स्पेक्ट्रम में, जो एक इतना वाइड स्पेक्ट्रम था नेशनलिज्म का, कोई एक लीडर से नहीं बना, ये 100 साल का मूवमेंट था. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास मूवमेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री. एक 100 साल की मूवमेंट में 100 हजारों लीडर्स निकले हैं. इन सब में एक कंसेंसस था इस आइडिया ऑफ इंडिया में. और वो आइडिया ऑफ इंडिया अगर संक्षेप में बोला जाए तो उसके 4-5 वैल्यूज हैं, 4-5 मुख्य मौलिक मूल्य हैं. नंबर 1 कि आजाद भारत जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, सेल्फ रिलायंट होगा. मतलब आजादी और आत्मनिर्भरता, कि दूसरे की गुलामी में नहीं रहेंगे, ना ही किसी को गुलाम बनाएंगे, और अपने आप पे हम आत्मनिर्भर रहेंगे. नंबर 2, भारत जो बनेगा वो एक लोकतंत्र होगा. इट विल बी अ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी का विजन 1890s में तिलक कह रहे हैं कि जो फ्यूचर इंडिया होगा, he was arguing for a constituent assembly bill. वो कहते हैं उस वक्त कि we will have an adult franchise. एडल्ट फ्रेंचाइज दुनिया में अभी कहीं नहीं था. अभी कई दशक बाद एडल्ट फ्रेंचाइज कहीं आने वाला था, और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइज होगा. मतलब हर एक इंसान, एवरी सिटीजन, irrespective of religion, caste, language, gender, will have the same rights. तो ये डेमोक्रेसी बिल्कुल शुरू से ही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक मौलिक, लोकतंत्र एक मौलिक विचार था. इससे जुड़ा हुआ है तीसरा, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म. क्योंकि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय में ये दोनों शब्द जो हैं इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते थे. सेक्युलर डेमोक्रेसी कहा जाता था, क्योंकि आप डेमोक्रेसी नहीं हो सकते अगर आप सेक्युलर नहीं है, और आप सेक्युलर नहीं हो सकते अगर आप डेमोक्रेटिक नहीं है. आप ये नहीं कह सकते भी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी तो है, पर जो हिंदू है उसकी वोट जरा डबल है, और जो मुस्लिम है उसकी आधी है, और तीसरों की तो भूल ही जाओ. तो ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं हुई ना. तो डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म आर नेसेसरी कॉम्बिनेशंस. तो तीसरा धर्मनिरपेक्षता, दैट इज ओके, इंक्लूसिवनेस. चौथा जो बेसिक आइडिया था भारत नेशनल मूवमेंट का, वो था प्रो पुअर ओरिएंटेशन, गरीब नवाजी. सोशलिज्म एक स्ट्रॉन्ग आइडिया था, पर उस पर कंसेंसस नहीं था. सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट भी थे, परंतु कंसेंसस इस पे था कि गरीब नवाजी होगी. दादा भाई नारू जी, जिसको नरमपंथी मॉडरेट कहते हैं, उनकी पहली किताब का टाइटल ही है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया. आरसी दादा भाई नारू जी, राणा डे, आप इनको पढ़ लीजिए 19वीं शताब्दी में. वो उनकी जो लेखन है, उनका जो आर्गुमेंट है, उसमें सबसे पहला आर्गुमेंट को ये है कि हमको अंग्रेजों को क्यों निकालना है, क्योंकि इससे हमारे देश में गरीबी फैल रही है. ठीक है ना. ये चौथा था. और पांचवा जो था वो था कि जो फ्यूचर इंडिया होगा वो एक आधुनिक सोच पर बेस्ड, साइंटिफिक थिंकिंग में, मॉडर्न थिंकिंग में, मॉडर्न आउटलुक पे, वैज्ञानिक साइंटिफिक थिंकिंग पे, रादर देन
based on obscurantism, wild faith, अंधविश्वास पे बेस्ड नहीं होगा, एक मॉडर्न होगा, जिसको नेहरू ने बाद में साइंटिफिक टेम्पर बोला। ये थी परिकल्पना। और अगर 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा, ये जो परिकल्पना थी ये एक यूनिक थी इन वर्ल्ड हिस्ट्री। हमें अपने आप पे बहुत प्राइड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि भारतवर्ष ने ये डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म बनाया जो कि कहीं दुनिया में था ही नहीं। जब नेशन स्टेट्स बने सारे दुनिया में, पहले एम्पायर्स होया करते थे, नेशन स्टेट्स नहीं होते थे। ये नहीं है कि नेशन स्टेट्स टाइम मेमोरियल से ही थे। नेशन स्टेट्स जैसे हम इनको जानते हैं, ये सब बनते हैं आधुनिक पीरियड में, राइट, मॉडर्न पीरियड में बनते हैं। जब नेशन स्टेट्स बनते हैं, यूरोप में पहले बनते हैं, तो एम्पायर टूटने से बनते हैं। हैब्सबर्ग एम्पायर, रोमन एम्पायर, ये सब एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ये टूटते हैं और ये नेशन स्टेट्स बनते हैं। तो वो नेशन स्टेट्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन रिलीजन, वन लैंग्वेज। कैथोलिक फ्रांस, प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड, unification of Germany on the basis of German speaking people, unification of Italy on the basis of Italian speaking people. उस समय, ये मैं 19वीं 18वीं 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, उस समय हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो इमेजिनेशन ऑफ नेशन है वो इट विल सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। हम विविधता को ही हमारे नेशनलिज्म का बेसिक मूल्य मानेंगे, ना कि हम कहेंगे कि हम एक मोनोक्रोमैटिक, एक ही लैंग्वेज, एक ही भाषा का देश बनाएंगे। ये एक यूनिक इमेजिनेशन था और इसको दुनिया भर मानती है, आज तक मानती है। इसीलिए आजकल दुनिया हैरान है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया वाज द एग्जांपल टू द वर्ल्ड दैट हाउ पीपल ऑफ we at the moment have more than 700 languages. Every conceivable religion in the world is here. How we can all live together. तो ये इमेजिनेशन हमारे 100 साल की नेशनल मूवमेंट की थी। तो दूसरी इमेजिनेशन है वन लैंग्वेज, वन रेस, वन रिलीजन। अगर उस पे आप डेमोक्रेटिक मूवमेंट से कंट्रोल ना रखो तो वो उसका अंतिम नतीजा, उसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो होता था, वो है हिटलर्स जर्मनी एंड मुसोलिनीज इटली। ठीक है, तो हमारी वो नेशनलिज्म नहीं है, ये हमको याद रखना है। हमारी नेशनलिज्म दूसरी नेशनलिज्म है और उसी नेशनलिज्म के सबसे प्रमुख प्रवक्ता और उसके लड़ने के लिए अमंग द बेस्ट वाज जवाहरलाल नेहरू। और गांधी जी नेहरू को इसलिए चुनते हैं कि ना कि सिर्फ ये सारे वैल्यूज के लिए, क्योंकि जो मैंने 4-5 वैल्यूज बताए ना, सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, प्रो पुअर एटसेट्रा, साइंटिफिक टेम्पर, सब इसमें कंसेंसस था। पर कोई किसी एक में ज्यादा आगे बढ़े हुए थे, दूसरे में थोड़े कम थे। कोई लीडर किसी दूसरे विषय में बहुत आगे थे, तीसरे में कम थे। परंतु नेहरू इन 5 मूल्यों पे पूरी तरह से सहमत थे और उसके लिए लड़ते थे। और दूसरी बात ये थी that Gandhi ji was convinced that Nehru would be critical in implementing these ideas in the newborn state after independence. जो काम जवाहरलाल नेहरू ने अपने 17 साल के प्राइम मिनिस्टरशिप में इंडिपेंडेंस के बाद जो उन्होंने किया, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो our discussion starts with what were the challenges, as Dr. Shankar very eloquently, and I think he summarized almost every point that I am to make very, very beautifully. So it makes my task even more difficult, because how to add to all the things that he has already said. But as he said, that the challenges at independence were enormous. And how does Nehru deal with those challenges? What can we learn from them for today? Because whichever party you may belong to, whichever point of view you may have, nobody denies that we are now facing very difficult times. Now, what can we learn from our history, from the past, from some of the tall leaders that our people have produced, the genius of the Indian people? क्या सीख सकते हैं उससे हम हमारे current problems को solve करने के लिए? सबसे पहला प्रॉब्लम जो डॉक्टर शंकर ने शुरू में ही कहा
कि आजादी के वक्त at the very point of independence, the biggest challenge comes to the idea of India. अगर आप 1946 to 48 का पीरियड देखिए, 47 में आजादी मिलती है, 46 से 48 का पीरियड देखिए, 46 में ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स होती हैं, उसके बाद नोआखाली में राइट्स होते हैं जहां को हिंदुओं का नरसंहार होता है खूब जोरों से, और फिर उसके रिटेलिएशन में बिहार में नरसंहार होता है मुसलमानों का. There are massive killings of Muslims and communalism spreads to the rural areas in a very big way. Then it is followed by the partition riots, where 5 lakh people were killed and about 60 lakh people became refugees. They became homeless. They were thrown out of their homes. So you can imagine the rise in the communal temperature. The bitterness, people have lost their close ones. Their families have been ripped apart, so you can imagine the height of the communal temperature at that point of time, which is capped by the murder of the Mahatma in January 1948 by Nathuram Godse, जिनकी आजकल पूजा भी करी जाती है, मंदिर बनाए जा रहे हैं जिनके नाम पे आजकल, शर्म की बात है, जिनका लिंक, जो कि ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बताया नहीं जाता है, इसलिए हमको आपको बताना है कि गोडसे कौन थे, क्या एक जस्ट वन मैडमैन. इसके बारे में नेहरू बहुत लिखते हैं, मैं उनको बताऊंगा अभी 1 मिनट में आपको. तो गोडसे हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द हिंदू महासभा एंड द आरएसएस एंड वाज अ फॉलोअर ऑफ सावरकर. ये सरदार पटेल को कोट कर रहा हूं मैं. सिर्फ बड़ी बड़ी स्टैच्यूज नहीं बनानी होती हैं, वो लोग जो बड़े बड़े स्टैच्यूज वाले हैं वो क्या कहते हैं, उनकी बात भी हमें सीखनी है. सरदार पटेल को मैं कोट कर रहा हूं, वो एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड एज होम मिनिस्टर एंड एज अ वेरी सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर, वो प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आफ्टर लुकिंग इनटू गांधीजी's मर्डर, आई हैव नो डाउट, ही सेज, that it was a fanatical wing of the Hindu Mahasabha directly under Savarkar that hatched the plan, the conspiracy, and saw it through. So it was a conspiracy and it was seen through, and the father of the nation was killed. तो ये है एक सिचुएशन. इस सिचुएशन में जिसमें जिसको डॉक्टर शंकर ने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया, होलोकॉस्ट लाइक सिचुएशन, मतलब एक जो दंगे फसाद से एक प्रलय की तरह एक सिचुएशन था, उस सिचुएशन से को हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ने कैसे डील किया. क्योंकि इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्योंकि उसी किस्म का सिचुएशन अब फिर से आजकल हो रहा है, आप देख ही रहे हैं. उस लेवल का नहीं है, पर अगर उस लेवल पे क्या किया था लोगों ने, हम अगर देखें तो शायद अभी भी हमें कोई रास्ता दिखे. गांधी जी क्या कर रहे थे? ट्रांसफर ऑफ पावर होने वाला है 46-47. वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स इन 20th century वर्ल्ड हिस्ट्री. एक बारी कॉलोनियल एम्पायर इंडिया की टूटती है तो विश्व में कॉलोनियलिज्म टूट जाता है. एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे देश आजाद होने लगते हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पूछिए सारी दुनिया में. तो इट वाज अ वेरी बिग इवेंट. उस एम्पायर का जहां पे कभी सूरज नहीं डूबता था, द सन ऑन विच द ब्रिटिश एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट, वो उखड़ने वाला है. और उस मूवमेंट के जो इसको उखाड़ रहा है, उसके जो सबसे बड़े प्रमुख नेता थे, लीडर, वो कहां थे जब ये ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है? वो नोआखाली के गांव में, नोआखाली का नाम भी नहीं जानते लोग, एक रिमोट पार्ट ऑफ बंगाल, ईस्ट बंगाल, जहां पे राइट्स हो रहे थे, वो वहां पे गांव में घूम रहे थे अकेले, पैदल. एक रात एक गांव में सोते थे, अगले दिन, और सिर्फ ये मैसेज लेके कि ये कम्युनल बिटरनेस एंड हेट्रेड एंड मर्डर जो हो रहा है ये गलत है. उनको नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ने कहा कि गांधी जी, इस वक्त ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है, आप तो उधर बैठे हैं, हाउ लॉन्ग विल यू बी देयर? गांधी जी का जवाब था, एज लॉन्ग एज इट टेक्स. जितनी जरूरत है मैं उतना रहूंगा. और आप सुन के हैरान होंगे कि गांधी जी नोआखाली में 4 महीने रहे. फ्रॉम नवंबर 46 टिल मार्च 47 ही वाज
touring Noakhali to contain the violence, to contain communalism. वो कहते हैं, what use is this independence if the soul of India has been destroyed? ये आजादी का मतलब ही क्या है अगर भारत की आत्मा जो है वही आपने नष्ट कर दिया। और भारत की आत्मा उनके हिसाब से था यूनिटी ऑफ द इंडियन पीपल, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसे अगर आपस में सद्भावनी ही नहीं बचा तो क्या, तो उस आजादी से हम क्या करेंगे? ये तो नहीं। उसके बाद गांधी जी वहां से बिहार जाते हैं, कलकत्ता आते हैं और फिर दिल्ली आते हैं, जहां पे आप जानते ही हैं कि आजादी के टाइम पे कितने राइट्स हो रहे थे। उनका आखिरी फास्ट भी जो था वो इसी पे था, कम्युनल हेट्रेड को रोकने के लिए। उनको उनके विषय में माउंटबैटन ने बहुत फेमस लाइन था उनका, दैट ही गांधी जी वाज लाइक अ वन मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी जी को कलकत्ते में सुहरावर्दी ने बुलाया आजादी के टाइम पे कि आप यहाँ पे रहिए, हमें डर है कि पार्टीशन होएगा तो यहाँ पे कलकत्ता में रिवेंज किलिंग्स होंगी और बहुत लोग मारे जाएंगे। गांधी जी ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं चलूंगा, आप मेरे साथ चलोगे। और एक आदमी नहीं मरा। तो उसके बाद ही माउंटबैटन ने कहा था ही इज लाइक अ वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये तो गांधी जी की बात है। नेहरू क्या कर रहे थे? ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट 46 में, जबकि ये बिहार में किलिंग्स हो रही हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो नेहरू क्या करते हैं, बंगाल में तो मुस्लिम लीग सपोर्टिंग पार्टी थी, यहाँ पे बिहार में तो कांग्रेस की सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, बट जो भी है कांग्रेस थी वहां पे। तो बिहार में नेहरू क्या करते हैं, वो अपनी पूरी कैबिनेट को लेके, मैं नाम बताता हूं कौन किस किस को लेके, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, सबको लेके वो बिहार पहुंच जाते हैं और कहते हैं हम यहां बैठे रहेंगे जब तक ना ये राइटिंग रुकती है। और वो इतनी मैसिव फैली हुई राइटिंग थी, उसको वो रोकते हैं और वो कहते हैं नवंबर 1946 में, आई विल स्टैंड इन द वे ऑफ हिंदू मुस्लिम राइट्स, मेंबर्स ऑफ बोथ कम्युनिटीज विल हैव टू ट्रेड ओवर माय डेड बॉडी बिफोर दे कैन स्ट्राइक एट ईच अदर। क्यों मैं बता रहा हूं ये? व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट। दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर दादरी हो जाता है, जहां पे एक भारतीय आर्म्ड फोर्सेस का सोल्जर, हमारे एक सैनिक के पिता को उनके फ्रिज में क्या मीट है कि नहीं है, उसके सस्पिशन में घसीट के रास्ते में उनको उनको पीट पीट के मार दिया जाता है। दिल्ली के पास ही मुजफ्फरनगर होता है, जहां से एथनिक क्लेंजिंग हो जाती है एक कम्युनिटी की कि बाहर निकाल दो इनको, ये नहीं रहेंगे यहाँ पे। गुजरात का जेनोसाइड हो जाता है। और वेयर आर पॉलिटिकल लीडर्स, है ना? तो कुछ जो 46-48 का पीरियड है, उससे शायद हमें कुछ सीखना चाहिए। उससे भी इंपॉर्टेंट, नेहरू जी गांधी की जो असैसिनेशन है उसको, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि he doesn't see it just as an accident, one madman. नेहरू जी कहते हैं he sees the assassination as an attempt to change the nature of the Indian state, to change the idea of India. क्योंकि जो आइडिया ऑफ इंडिया जिससे 100 साल की लड़ाई लड़ी गई, उसी से तो आजाद भारत बनेगा ना। परंतु नेहरू जी कहते हैं कि गांधी जी के असैसिनेशन से ये कोशिश करी कि जो भारत अब बनेगा वो आइडिया ऑफ इंडिया का भारत नहीं, एक दूसरा भारत बनेगा, एक दूसरे परिकल्पना का भारत। He writes to the chief ministers on 5th February 1948, गांधी जी की हत्या के shortly afterwards, वो लिखते हैं, this was a deliberate coup d'etat. A deliberate coup d'etat was planned involving killings of several persons, not only in the Mahatma, and the promotion of general disorder to enable an organization, and he names it also, I don't have to name it for you, to seize power. मतलब ये जो एक सिचुएशन हो गया था डिसऑर्डर का, कम्युनल टेम्परेचर्स वेरी हाई का, ये एक मौका देखा सांप्रदायिक ताकतों ने कि ये मौका है कि अब जो भारत बनेगा वो पाकिस्तान का मिरर इमेज बनेगा, पाकिस्तान की छवि में
भारत बनाएंगे हम, अब पाकिस्तान बना है इन द नेम ऑफ इस्लाम, हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। पर ये हिंदू राष्ट्र तो नेशनल मूवमेंट की परिकल्पना में कभी था ही नहीं, वो तो एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना थी। तो इसको नेहरू जी कहते हैं ये कू की एफर्ट थी कि इस भगदड़ में के बीच में आप किसी तरह पूरे आइडिया ऑफ इंडिया को ही उल्टा कर दो, एंड यू क्रिएट अ हिंदू इंडिया एज अ रिफ्लेक्शन और अ काउंटर पार्ट ऑफ अ मुस्लिम पाकिस्तान। बट हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे इंक्लूडिंग नेहरू, दे वर नॉट गोइंग टू लेट इट हैपन। क्या करते हैं वो? हमारे बहुत सबसे ऊंचे स्टैच्यू वाले सरदार पटेल क्या करते हैं? जो एज आई सेड होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो नेहरू के सपोर्ट से ही पुट्स 25,000 आरएसएस पीपल इन जेल। He bans the RSS. He accuses them of celebrating Gandhiji's murder. मिठाई बांटते थे वो, कहते हैं। ये सरदार पटेल के वर्ड्स हैं, मेरे नहीं है। उनके स्टैचू के नीचे लिख देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो पहला इलेक्शन हुआ आजादी के बाद, अब याद रखिए पहला इलेक्शन 3 साल के अंदर हो रहा है। 47 में आजादी मिलती है, 46 to 48 ये रायट सिचुएशन चल रहा है, होलोकॉस्ट जिसको डॉक्टर शंकर डिस्क्राइब कर रहे हैं करेक्टली। उस सिचुएशन के बाद अब 3 साल के अंदर एक पीसफुल इलेक्शन करते हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस। ये तभी हो सकता था अगर आपकी एक विरासत हो, 100 साल की नेशनल मूवमेंट की विरासत, कि आप 3 साल के अंदर एक पीसफुल इलेक्शन करते हैं जिसमें जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसको आप बुरी तरह पिछड़ देते हैं। कैसे होता है ये जो पहला इलेक्शन है, जवाहरलाल नेहरू टर्न्स इट इनटू अ रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब एक सिंगल इशू, बेसिक इशू पे इलेक्शन है। वो इशू उनका ये है कि जो अब हम भारत बना रहे हैं, क्या वो सेक्युलर भारत बनेगा? विल वी मेक अ सेक्युलर इंडिया और विल वी मेक अ हिंदू राष्ट्र? Will we be the counterpart of Pakistan? क्या हम पाकिस्तान के जैसे बनना चाहते हैं या हम एक दूसरे किस्म का देश बनना चाहते हैं? He traveled 40,000 kilometers all over the country, और उस वक्त 8,000 करोड़ के प्लेन नहीं होते थे। He spoke to 3.5 million people, 3.5 करोड़, 1 out of 10 people he spoke to directly, trying to convince them कि हम कैसा भारत बनाएंगे। और नतीजा क्या होता है? ड्रामेटिक रिजल्ट, कमाल का नतीजा होता है कि सारे जो कम्युनल फोर्सेस थे, मुस्लिम लीग तो चली गई उधर पाकिस्तान, जो हिंदू कम्युनल फोर्सेस थे, हिंदू महासभा, जनसंघ, रामराज परिषद एटसेट्रा, सब मिलके they could get only 6% of the votes, only 10 out of 489 seats. The people of India overwhelmingly voted for a secular India, and this is 3 years after the rioting. ये एक सिग्निफिकेंट बात है जिसे हमें याद रखना चाहिए। आज तक भी, उस इलेक्शन के बाद आज तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा गया है जिसमें हमने सेक्युलरिज्म को एक बेसिक इशू बना के रखा है कि ये इलेक्शन जो है, ये इसमें हम देखेंगे कि सेक्युलरिज्म इज द इंपॉर्टेंट इशू। जबकि आप देख ही रहे हैं कि वी ऑलमोस्ट रीच अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन दीज डेज। आंतरिक युद्ध की एक सिचुएशन होती जा रही है जहां पे ओपन कॉल्स फॉर जेनोसाइड किए जा रहे हैं। ओपन कॉल, नरसंहार के कॉल हो रहे हैं कि मार दो अल्पसंख्यकों को, लाखों के नंबर पे मार दो, पैसे खर्च के बड़े महंगे महंगे बंदूकें खरीदो ताकि अल्पसंख्यकों को मार दे। ऐसे ओपन कॉल हो रहे हैं, पुलिस देखती खड़ी है। इस सिचुएशन में भी हम इसको सेंट्रल इशू नहीं बना रहे हैं, हम अपने इतिहास से सीख नहीं रहे हैं। और इस इतिहास की सीख में एक जवाहरलाल नेहरू की एक और कमेंट भी मैं आपको कोट कर देता हूं उस वक्त का। वो कहते हैं, a big lesson to be learned. He says, if fascism ever came to India, it will take the form of majority communalism. वो कहते हैं अगर फासीवाद कभी भारत में आई, भगवान करे ना आए, कि कभी आई, अगर लोकतंत्र नष्ट होगी तो वो बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता से नष्ट करी जाएगी।
ये भी एक वार्निंग हमें नेहरू जी से याद रखना चाहिए. सेकेंड लेसन टू बी लर्न. तो फर्स्ट लेसन इज, एज आई सेड, आइडिया ऑफ इंडिया का सेक्युलरिज्म का लेसन था. सेकेंड लेसन इज हाउ टू बिल्ड डेमोक्रेसी. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम नेहरू ऑन डेमोक्रेसी? फिर क्यों जरूरत पड़ गई डेमोक्रेसी में बात करने की? द वर्ल्ड नो लॉन्गर, बिलीव यू मी, thinks India is a full democracy. They do not accept us as a full democracy. Democracy index में हमारा ranking has fallen to the 53rd rank. 53वां नंबर है हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स में. We are being described as a flawed democracy, खोट वाली डेमोक्रेसी. The Sweden-based VDEM Institute describes as an electoral autocracy. मतलब सिर्फ चुनावी लोकतंत्र है, असली में लोकतंत्र नहीं है. चुनाव से तो हिटलर भी जीत गए थे. लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है. यह हमको अब सिखाया जा रहा है हिंदुस्तान को. और ये कहते हैं, ये मेरे वर्ड शब्द नहीं है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के हैं. वो जो डाउनग्रेडिंग हुई है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इंडेक्स में, उसका कारण भी बताते हैं कि क्यों डाउनग्रेड किया जा रहा है इंडिया को. वो कहते हैं गवर्नमेंट प्रोमोटेड एंटी माइनॉरिटी फीलिंग्स बढ़ाई जा रही है, नंबर वन. दूसरी, डिक्रीज इन सिविल लिबर्टीज, नागरिक की स्वतंत्रता को घटाया जा रहा है. मानव ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार को घटाया जा रहा है भारतवर्ष में. और वो कहते हैं, आई एम कोटिंग द VDEM इंस्टीट्यूट, diminishing freedom of expression of the media and civil society have gone the furthest in the last few years. ठीक है. एक और भी इंडेक्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडेक्स. उसमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडेक्स, जर्नलिस्ट की आजादी की जो इंडेक्स है, उसमें भी भारत अब नीचे से गिनती आती है, भारत की ऊपर से नहीं. अब सबसे नीचे चले जाते हैं, फिर देखते हैं कि भारत उसके आसपास कहीं घूम रहा है. शर्म की बात है. इस सिचुएशन में हमें सोचना चाहिए कि हम नेहरू जी से क्या सीख सकते हैं. फॉर नेहरू, डेमोक्रेसी एंड सिविल लिबर्टीज वर नॉन नेगोशिएबल. इस पे कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता. अगेन, नेहरू जी could not put it as beautifully as Gandhi ji used to put it. Gandhi ji, as I said, had a tremendous capacity to use beautiful imagery to bring basic points in simple words to the common people of India. Gandhi ji कहते थे, civil liberties and the freedom of speech is the water of life. And he said, have you ever heard of water being diluted? अब पानी को तो नहीं ना डाइल्यूट कर सकते हो, दूध को कर सकते हो, किसी और चीज को कर सकते हो. मतलब इट इज नॉन नेगोशिएबल. सिविल लिबर्टीज इज दैट इंपॉर्टेंट. ये गांधी जी और नेहरू के विश्वास है. नेहरू कहते हैं, इफ सिविल लिबर्टीज आर सप्रेस्ड, अ नेशन लूजेस ऑल वाइटैलिटी. 1936 में वो सिविल लिबर्टीज यूनियन बनाते हैं नेहरू. फ्री प्रेस का मतलब क्या है? नेहरू कहते हैं, he says free press means allowing the severest criticism of oneself. He says free press where you are being praised by the press. वो कौन सी फ्री प्रेस हुई? फ्री प्रेस वो प्रेस है जो आपको सिवियरली क्रिटिसाइज कर सकता है. और जब सिवियर क्रिटिसिज्म नहीं होता था तो नेहरू जी बाय एग्जाम्पल क्रिटिसाइज्ड हिमसेल्फ. ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है कि जब नेहरू जी को तीसरी बारी प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था कांग्रेस का पार्टी का, तब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा अपने को क्रिटिसाइज करते हुए, चाणक्य के नाम से एक स्यूडोनिम यूज करके, जिसमें उन्होंने सारी चीजें क्रिटिसाइज करी कि कैसे वन मैन शो नहीं होना चाहिए इत्यादि इत्यादि. अपने 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 आप को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन नहीं आ रहा है. ही बिलीव्ड दैट द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज द ऑपोजिशन. ये ऑपोजिशन मुक्त का जो नोशन है, ये गलत नोशन है. लोकतंत्र का मतलब ये है कि ऑपोजिशन होनी चाहिए, खुली ऑपोजिशन होनी चाहिए, नहीं तो कोई लोकतंत्र नहीं बच सकता. वो अपने, और वो इन प्रैक्टिस ये करते थे. अपना उनका जो नेहरू जी का जो पहला कैबिनेट है, पहला कैबिनेट आजादी के बाद, उसमें किन किन को डाल रहे हैं? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डाल रहे हैं, जो कि हिंदू महासभा के थे.
कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, अंबेडकर को डाल रहे हैं। जॉन मथाई जो टाटा के डायरेक्टर थे, सीडी देशमुख जो आईसीएस में थे, हर किस्म के लोगों को, क्योंकि देश जो आगे बढ़ना था सबको साथ लेके बढ़ना था। 1950 में when he was at the peak of his popularity and influence, he gives this speech: I am not afraid of the opposition in this country. I do not want India to be a country in which millions of people say yes to one man. I want a strong opposition. At another time, he says, again, warning of a situation which you will recognize. He says, this is too large a country with too many legitimate diversities. ये बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा legitimate विविधता है इसके अंदर. It is too large a country with too many legitimate diversities to permit any one so-called strong man, कि एक दबंग शक्तिशाली आदमी आके, who will trample over the ideas of everybody else. कहते ये ऐसे नहीं डेमोक्रेसी बनती है. This worship of one man who will solve all problems, एक messiah. तो ये, this is dangerous, he said, to democracy. It leads to dictatorship. Nehru ke, as I said, in practice, he built the institutions of democracy. Democracy सिर्फ इलेक्शन जीत के नहीं होता है, एक संस्थाओं, लोकतंत्र की संस्थाएं जो होती है उनको मजबूत बनाने से डेमोक्रेसी बनती है. क्या संस्थाएं लोकतंत्र की? सबसे पहले आप पार्लियामेंट को लीजिए. Nehru's respect for parliament was legendary. Even at an old age, he would sit through entire sessions. घंटों बैठते थे और छोटे से छोटे पार्टी का आदमी अगर क्रिटिसाइज करता था तो उसको पूरा सुनते थे, उसका जवाब देते थे और उनको प्रेज करते थे. जब जनसंघ के, मैंने आपको नंबर ही बताए थे, कुछ हाथ में गिनने वाले एमपीज थे, उस वक्त वो अटल बिहारी वाजपेयी की उठ के तारीफ करते हैं और कहते देखो ये यंग लड़का जो है किस मजबूती से अपना पोजीशन रख रहा है. ये नहीं कहते थे कि ये मेरे से अपोज कर रहे थे, उसको निकाल ही दो, देश निकाला करो, इनको पाकिस्तान भेज दो. Opposition to him was critical for the maintenance of democracy, and the parliament was the place where all opinions were to be expressed. ये नहीं है कि आप opposition को silence कर दीजिए, आप देखते ही हैं क्या हो रहा है, बोलने का मौका ही नहीं. बिल्स पास हो जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बिल्स पास हो जा रहे हैं जस्ट बाय रेज ऑफ हैंड्स. कैबिनेट सिस्टम, नेहरू जी, अब सीडी देशमुख की ऑटोबायोग्राफी में वो इसका जिक्र करते हैं. वो बताते हैं कि सीडी देशमुख फाइनेंस मिनिस्टर थे करीब 6 साल नेहरू के कैबिनेट में. वो कहते हैं कि नेहरू यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर उनके पास जाके कहता कि सर ये ठीक है कि नहीं. कहता है अपना डिसीजन खुद लेना सीखो, डोंट कीप रनिंग टू मी फॉर अप्रूवल. एक सीखने वाली बात है. अब वो कैबिनेट सिस्टम, मतलब वो वन मैन शो के बिल्कुल टोटल खिलाफ थे. प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, नेहरू के टाइम पे टोटल फ्रीडम. कोई कार्टूनिस्ट जेल नहीं जाता था, कोई कॉमेडियन जो क्रैक करने के पहले ही नहीं जेल में डाल दिया जाता था, जो आजकल हो रहा है. आर.के. लक्ष्मण इज लेजेंडरी. नेहरू का जितना मजाक लक्ष्मण ने बनाया शायद किसी ने नहीं बनाया होगा, किताबें छपी हैं उस पर. पर दिस वाज परमिटेड. द जुडिशरी वाज इंडिपेंडेंट, एंड जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने की पूरी कोशिश होती थी. ना कोई जुडिशरी पे दबाव डाला जाता था और ना ही कोई लालच देके जुडिशरी पे असर करने की कोशिश कि भाई आपको राज्यसभा एमपी बना देंगे, या जस्टिस लोया को याद करना, है ना. तो इस किस्म की चीजें जवाहरलाल नेहरू के समय पे नहीं होती थी. क्योंकि मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, नेहरू यूनिवर्सिटीज भी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है. इसीलिए जो डेमोक्रेसी को तोड़ते हैं वो पहले यूनिवर्सिटी को अटैक करते हैं. जब हिटलर पावर में आए तो सबसे पहले उन्होंने जर्मनी का उस वक्त जो सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी था, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी, उस पर अटैक किया. उस किस्म का अटैक जो हमने मेरी यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखा.
तो नेहरू जी क्या कहते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में नेहरू जी का एक स्टैच्यू है, उसके नीचे ये लिखा भी है। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, फॉर टॉलरेंस, सहनशीलता, फॉर रीजन, फॉर एडवेंचर ऑफ आइडियाज, खुले सोच की रोमांच, फॉर द सर्च फॉर ट्रूथ. If universities discharge these duties adequately, then all is well with the nation and the people. और हम क्या देख रहे हैं? Universities are being silenced. Brutal attacks, police lathi charges, arrests of students, intimidating of faculty. I can tell you from direct experience, हमारे यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है 1916 से लेके. फोर्सिंग द चेंज ऑफ सिलेबाई. यूनिवर्सिटी नहीं डिसाइड करेगी, कोई और बताएगा आपको कि आपका सिलेबस में क्या आएगा. आप 300 रामायण पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में. निकाल दिया. हमारी जो विविधता थी कि हम अपने रामायण के भी हमारे 300 वर्षन थे, उस पे एक प्रसिद्ध आर्टिकल रामानुजम का था दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में, वो हटा दिया गया. ये एक सोचने वाली बात है. ये सिचुएशन अब आ गया है कि मध्य प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी में, आपको याद दिलाना चाहते हूं क्योंकि आजकल की गोदी मीडिया तो सारी चीजें भुला देती है. तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी में एक वेबिनार होना था, जैसे कि हमारा वेबिनार हो रहा है. और ये वेबिनार एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से हो रहा था. टेक्नोलॉजी का फायदा है, ये दो यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट कर रहे थे. सब्जेक्ट था साइंटिफिक टेम्पर, और बोलने वाले आप ही के यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध अध्यापक प्रोफेसर अपूर्वानंद को बुलाया गया था, और एक CSIR के बड़ा फेमस ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान का है, उसके एक बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट प्रोफेसर गौहर रजा को बुलाया गया था. पोएट, साइंटिस्ट, इनको बुलाया गया था कि इस सब्जेक्ट पे बोले. तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन से ग्रुप, दे वेंट टू द पुलिस एंड सेड कि ना जी ना, ये नहीं बोल सकते, ये बोलेंगे तो यहाँ तो ये देशद्रोही है और यहाँ तो हंगामा हो जाएगा, इनको नहीं बोलना. द पुलिस, a senior police officer lands up at the university and tells the vice chancellor कि नहीं, आप ये सेमिनार नहीं कर सकते. तो वीसी वो कोशिश करते हैं, कहते नहीं जी कैसी है, यहाँ पे कोई है तो डिस्कशन है, ये है वो है, ये तो बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, ये देखो कुछ नहीं होगा. कहते हैं अगर कुछ हुआ तो हम पर्सनली हम आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे, आप जिम्मेवार होंगे. कहते ये नहीं हो सकता. दबाव डाला जाता है उन पर. और ये सेमिनार पर जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था वो तो उस पर तो किसी का दबाव बनता नहीं है. उन्होंने कहा हम तो करेंगे. तो वो होता है, वेब में होता है. परंतु इस यूनिवर्सिटी में पुलिस ने आके इंश्योर किया कि कैंपस में कंप्यूटर्स, जहां पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कंप्यूटर्स ऑन करके कोई सुनेगा नहीं इसको. तो जब कहते हैं ना कि एडवेंचर ऑफ आइडियाज, खुले सोच को अगर आप इस तरह बंद करेंगे तो डेमोक्रेसी नहीं सरवाइव कर सकता. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन ऑफ सॉवरेंटी. डेमोक्रेसी भी थोड़ा बहुत बोला. सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता. देखिए ना, सिर्फ ट्रांसलेट कर देने, एक वर्ड को ट्रांसलेट करने से वो सच नहीं हो जाता है. जैसे कि आप सेल्फ रिलायंस को आपने आत्मनिर्भरता कहना शुरू कर दिया तो आप आत्मनिर्भर नहीं बन गए. आत्मनिर्भरता कहने से हो नहीं जाता. जस्ट एज नेहरू अपने आप को फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द कंट्री कहते थे, उसको आप ट्रांसलेट करके प्रधान सेवक बना दोगे तो आप प्रधान सेवक नहीं बन जाओगे, है ना. तो उसको जो सेल्फ रिलायंस का, उसको एक ठोस बनाने की जरूरत थी, और वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो नेहरू कैसे करते हैं. नेहरू वाज वेरी क्लियर एट इंडिपेंडेंस दैट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वाज यूजलेस इफ यू डिड नॉट हैव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. ही सेड जब भारत आजाद हुआ तो वी वर इन अ व्हाट इज कॉल्ड अ न्यो कॉलोनियल सिचुएशन. आप पॉलिटिकली तो आजाद हो गए, परंतु आप उन्हीं देशों पे डिपेंडेंट हैं जिससे आप आजाद हुए. क्यों? क्योंकि
आजाद भारत अगर ग्रो करना चाहेगा, अगर आप प्रगति करना चाहेंगे, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करेंगे किस पे? फैक्ट्री बनाएंगे, मशीनरी चाहिए आपको। इंडिया प्रोड्यूस्ड नो मशीनरी एट इंडिपेंडेंस। 95% ऑफ योर मशीन टूल्स, आपके ये प्लायर्स और रेंचेस जो हैं, ये भी इंपोर्ट होते थे, 95%। तो आजादी कहां? 1945 से इंडस्ट्रियल डेलीगेशन भारत से जा रही है सारे दुनिया में कि भाई इंडिपेंडेंट इंडिया जब बनेगा, तो हम जब प्लानिंग करके जब इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, तो मशीन कहां से आएगी? तो इसको एक न्यू कॉलोनियल सिचुएशन नेहरू कहते हैं इसको तोड़ना है, नहीं तो हमारी आजादी नहीं बनेगी। और इसको तोड़ने के लिए वो एक स्ट्रैटेजी बनता है जिसको नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी कहते हैं, जो कि सेकंड प्लान से इंप्लीमेंट होता है। महालनोबिस बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट स्टैटिस्टिशियन थे, और उनके साथ मिलके नेहरू का ये स्ट्रैटेजी बनता है, जिससे पब्लिक सेक्टर को इस्तेमाल करते हुए एक कैपिटल गुड इंडस्ट्री पे एम्फेसिस रख के ग्रोथ की कोशिश होती है। कैपिटल गुड्स मतलब मशीन गुड्स, इनको बनाने की कोशिश होती है। और अमेजिंग रिजल्ट्स, जब कहते हैं ना कि कुछ नहीं हुआ नेहरू जी के टाइम पे, फर्स्ट 40 इयर्स वर वेस्टेड, तो ये इतना ए हिस्टोरिकल है, सारी दुनिया मानती है। डेवलपमेंट लिटरेचर अगर आप 1960s का पढ़ेंगे, तो वो इंडियन एक्सपीरियंस को एक केस स्टडी बताते हैं कि हाउ अ नॉन टोटलिटेरियन सोसाइटी कुड मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन लाइक इंडिया। क्या होता है आप सुनिए, अब जरा स्टैटिस्टिक्स सुनिए, बहुत कम बोलूंगा क्योंकि हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को समाओ एक इंपीरियलिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स है कि थोड़े बहुत अगर फिगर्स और ग्राफ और स्टैटिस्टिक्स दे दो तो वो कहते हैं ओए ये तो मेरे से नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टैटिस्टिक्स नहीं है। एट इंडिपेंडेंस वी हैड टू इंपोर्ट virtually 100% of machinery to make any investment. That means to have any growth. Nehru-Mahalanobis strategy se, through which they brought in, as I said, capital good industries. They set up things like Hindustan Machine Tools, Bharat Heavy Electricals Limited, Bharat Earth Movers, IDPL, etc., etc. जो ये सारे पब्लिक सेक्टर जो अब बेच दिए जा रहे हैं, दान किए दिए जा रहे हैं, ये इनके थ्रू से इन्होंने ये मशीनरी की शॉर्टेज कंटेन करने की कोशिश करी। नतीजा, by 1960, only 43% of the machines had to be imported, and by 1970 only 9% had to be imported. मतलब 91% जो मशीन की जरूरत है भारत को निवेश करके आगे बढ़ने का, इन्वेस्ट करके इंप्रूव करने का, 91% हम भारत में ऑलरेडी बना रहे थे within less than 20 years, sorry, within 25 years of independence. It was a remarkable achievement. This is what is called the unstructuring of colonialism. Nehru's role was in unstructuring colonialism so that later on we could open up to the world as we did after 1991. ये एक जरूरी फेज था, and he does it in a most brilliant manner. It is this which enables India to have an independent foreign policy. It is this which enables Nehru to lead the non-aligned movement of 100 countries. It is this which enables Nehru to cock a snook at both the superpowers and say कि हम ना तुम्हारे पीछे लगेंगे ना तुम्हारे पीछे लगेंगे। भारत एक आजाद independent foreign policy करेगा, and he collects 100 countries to do that. It is possible only if you yourself have the independence to manage without the support of the outsider. जैसे मनमोहन सिंह जी ने अभी एक स्पीच दिया आज, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स को झप्पी पाने से, हग करने से या उनके साथ झूला झूलने से इंडिपेंडेंस नहीं आती है। इंडिपेंडेंस कम्स विद समथिंग सब्सटैंटिव। यू हैव टू एक्चुअली मेक अ ट्रांजिशन, स्पेशली इन योर इकोनॉमी, and that is what Nehru succeeded in doing. But independence also meant not only the ability to invest, independence also meant food security. खाद्य पदार्थ होने चाहिए भारत के पास। हमारा जो बेगिंग बोल इमेज था कि अगर आप हमको फूड सप्लाईज नहीं दोगे तो यहाँ तो फैमिन हो जाएगा, जो सिचुएशन था, आजादी जब भारत को मिलती है तो 4 साल पहले उसके 30 लाख लोग भूखमरी से मर जाते हैं। ये हाल में तो आजादी मिलती है आपको,
जो डॉक्टर शंकर ने आपको याद दिलाया, किस सिचुएशन में मिलती है आजादी, तो उसको भी बदलना जरूरी था। और उसके लिए एक नेहरू प्लेड अ मेजर रोल। और यहां इसको मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक और झूठ नेहरू के बारे में बोला जाता है कि नेहरू जी ने जी इंडस्ट्री तो कर दी, वो तो मानना ही पड़ता, सबको दिख रहा है कि डैम्स बना दिए, इंडस्ट्रीज कर दिए, स्टील प्लांट्स हो गए, सब नेहरू के टाइम पे हुए। कहते पर उन्होंने एग्रीकल्चर को भी बिल्कुल, कृषि को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा झूठ है। 200 साल की जो जमींदारी सिस्टम थी भारत में, वो आजाद होने के 10 साल के अंदर खत्म हो जाती है। बाय 1957 द लैंड रिफॉर्म्स डिस्ट्रॉय द जमींदारी सिस्टम। भारत के प्रथम 3 जो प्लान्स थे, 5 पंचवर्षीय परियोजना जो थी, फर्स्ट 3 प्लान्स, इन दीज 3 प्लान्स इंडियन एग्रीकल्चर ग्रू, इसकी जो ग्रोथ रेट थी was 8 times higher than the growth rate of agriculture in the previous 50 years. पिछले 50 साल में जो ग्रोथ रेट थी, ये भारत की आजादी के पहले 15 साल में 8 गुना तेजी थे। और आप कहते कि नेहरू ने जी एग्रीकल्चर के लिए कुछ किया नहीं। नेहरू सेट द स्टेज फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन उनके डेथ के बाद होता है, पर ग्रीन रेवोल्यूशन की सारी तैयारी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हो जाती है, इंक्लूडिंग द इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसके बेसिस पे ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। इट वाज लॉन्च्ड इन नेहरूज टाइम। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति तभी हो सकती थी अगर भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म हो चुका होता, अगर ट्रैक्टर्स आपके पास होते, अगर डीजल इंजन आपके पास हो, अगर डैम हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी हो, अगर रासायनिक खाद हो, तभी ग्रीन रेवोल्यूशन हो सकती थी। और इन सब की तैयारी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे होती है। तो ये कहना कि नेहरू ने निगलेक्ट किया और सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री ने आके एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, ये बिल्कुल हिस्टोरिकली कंप्लीटली इट्स अ लाई। But let me quote to you, since you may think since I come from JNU, so I'm pro Jawaharlal Nehru University. Let me quote to you one of the most respected historians and agricultural economists, which every student of history and economics reads, Daniel Thorner. आप सब बच्चों ने पढ़ा ही होगा Daniel Thorner. Daniel Thorner क्या कहते हैं? बस एक लाइन कोट करके ये सब्जेक्ट खत्म करूंगा. He says, it is said that in the initial 5-year plans, neglected agriculture. ये कहा जाता है कि इनिशियल 5 पंचवर्षीय योजनाएं जी वो एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट करती है. This charge cannot be taken seriously. The facts are, in India's first 21 years of independence, more has been done to foster change in agriculture, and more change has actually taken place than in the preceding 200 years. कहता पिछले 200 साल में जो चेंज नहीं हुआ, ये पहले 21 साल में आजादी के बाद एग्रीकल्चर के अंदर हुआ है. I will leave it at that. Lastly, most importantly, Nehru realized that true sovereignty, असली आजादी तभी आ सकती है अगर if you are self-reliant in science and technology. अगर ये एरिया को आप, which was kept barren by the colonial rulers deliberately, if this area is not developed, we will still remain dependent. Even if you make your own machines, you'll still be dependent on the advanced world for science and technology. And therefore, in the 1950s itself, we think of the first few plants as plants which built only dams and steel plants. But this is the time that Nehru set up the IITs, the National Physical Laboratory, the National Chemical Laboratory, the Bhabha Atomic Research Center, the All India Institute of Medical Sciences. Every conceivable academic institution that you can think of was brought up at that time. What did Nehru do? He anticipated the knowledge revolution. Rather than denying him his role, do accept that he anticipated the knowledge revolution. It is because of this anticipation that India is today able to participate in the information revolution. आप सब जानते हैं that today the service sector is the leading sector of the Indian economy. Nearly half the Indian GDP is produced by the service sector. और service sector क्या sector है?
It is a sector which is based on knowledge and information. So it is on Nehru's shoulders that we are building the today's India, not against him, not despite him. As for the last item, the scientific temper, or the second last item, the less said, the better. We are making ourselves a laughing stock in the world. हंसती है दुनिया हमारे पे. आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में आजकल क्या कहा जा रहा है. हमारे बड़े से बड़े नेता डॉक्टर्स की मीटिंग में हॉस्पिटल को इनॉग्रेट करते हुए कहते हैं कि हमको जी प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी आती थी, और कोई डॉक्टर उठ के चला नहीं जाता वहां से प्रोटेस्ट में. प्राचीन भारत में हमको प्लास्टिक सर्जरी आती थी. प्रूफ कि गणेश जी के नाक में हाथी का सूंड कैसे लगा, जरूर प्लास्टिक सर्जरी से लगा होगा. गवर्नर वेस्ट बंगाल के एक इंजीनियरिंग फेयर को इनॉग्रेट करते हुए कहते हैं कि एंशिएंट इंडिया में हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. प्रूफ कहते हैं अर्जुन का जो बाण था ना, तीर, उस तीर के सामने न्यूक्लियर बॉम्ब लगा हुआ था. ही हैड अ न्यूक्लियर टिप्ड एरो. अब किस किस्म के बच्चे पैदा करेंगे, किस किस्म की साइंटिफिक टेम्पर पैदा करेंगे अगर इस तरह की माइथोलॉजी हमारे लीडर्स ही स्प्रेड करेंगे. अगर आप ऐसा स्प्रेड करेंगे तो आप कोरोना से भी गोबर, गोमूत्र, थाली, ताली, गंगा स्नान, ये सब करके उसको भगाने की कोशिश करेंगे. दिस इज गंगा स्नान के बारे में तो आपको पता ही है. बुल्ले शाह का बड़ा फेमस एक पोएम है. वो कहते हैं कि अगर गोते लगाने से ही अगर ईश्वर मिल जाते ना, तो डड्डुओं को और मछलियों को तो ईश्वर सबसे पहले मिल जाने थे. सिर्फ गोते लगाने से नहीं होता है. साइंटिफिक टेम्पर की जरा जरूरत है, जिसको अब बर्बाद किया जा रहा है. Last, and this is genuinely the last, for Nehru, the issue of the poor. As I said, idea of India ka jo Garib Nawazi, the protection of the poor was a very important part. Us pe Nehru was very strong. As he put it in 1952, wo kehte hain, I'm quoting him, if poverty and low standards continue, then democracy ceases to be a liberating force. It must therefore aim continuously at the eradication of poverty. In other words, political democracy is not enough. It must develop into economic democracy also. And सिर्फ political आजादी से नहीं होता, economic democracy भी चाहिए. And for that, he took giant steps, जो मैंने बताए, land reforms, the community development program, the public sector, the popularizing of the socialist idea, एक समाजवादी सोच, ये सब नेहरू के एक बड़े major contribution थे. Most important, the maintenance of democracy itself was one of the biggest pro-poor thing that could be done. ये जो सोच है, that democracy is not only a political thing, that it has a very important economic implication, was brought to the world, brought to our notice very brilliantly by Amartya Sen. उन्होंने एक कंपैरिजन किया. उन्होंने कहा देखिए चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी. नतीजा ये हुआ कि between 20 to 60 million, 2 से 6 करोड़ लोग वहां पे मारे गए फैमिन्स में, और दुनिया को पता तक नहीं लगा. कहते हैं एक लोकतंत्र में यह हो नहीं सकता है जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जहां पे आपके हिंदुस्तान जैसी जगह में जहां पे हजारों न्यूज़पेपर्स हैं, हजारों चैनल्स हैं, वहां पे कालाहंडी में एक डेथ होती है तो सरकार गिर जाती है. एक फैमिन नहीं हुआ आजादी के बाद, जबकि आजादी के पहले हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैमिन हो रहा था. तो कहते हैं डेमोक्रेसी इटसेल्फ, it's not a guarantee for the, it is the ultimate guarantee for the poor, that the poor will not be totally left out. So Nehru's ability to keep the democratic framework alive in a very difficult situation was perhaps one of the biggest pro-poor things that he could have done. Stark contrast today. I don't have to point it out to you. The whole world points it out. Floating bodies, dead bodies on the Ganga. Thousands of people walking at heat of 45 degrees with their children, with their sick parents, dragging them on suitcases, on cycles,
for hundreds of miles to their villages. As I said, it's not only one newspaper, from New York Times to Le Monde to Guardian, the whole world was shocked to see कि ये हिंदुस्तान में हो रहा है. So we are obviously leaving out our poor. We have fallen. We are among the lowest in the hunger index, lower than even Bangladesh and Pakistan. We are reaching the limits of sub-Saharan Africa. Half of the children in India are malnourished. और हम बोस्ट कर रहे हैं कि we have the largest number of billionaires. 100 billionaires हो गए आपके. कोरोना काल में आपके कुछ लोग की संपत्ति जो है वो 20, 25, 50 गुना बढ़ गई, और गरीबों की हाल पूछने वाला कोई नहीं है. I'll end with what Dr. Shankar started with. Nehru's fantastic effort to raise India from the mud and filth that was left behind by the British. This is not my phrase. Rabindranath Tagore, shortly before he died, he said, British rule will one day have to go because of the movement against it. एक दिन इनको जाना ही पड़ेगा. But when they leave, what mud and filth will they leave behind? क्या गंद और कीचड़ छोड़ के जाएंगे? क्या गंद और कीचड़ छोड़ के गए? मैंने आपको बताया अभी कि आजादी के पहले ही 30 लाख लोग तो भुखमरी से मर जाते हैं. आजादी के टाइम पे 92% of Indian women were illiterate. 84% of Indian men total were illiterate, अनपढ़. आजादी के टाइम पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 30. मतलब आम आदमी 30 साल के ज्यादा नहीं बचता था एवरेज. इसका मतलब जो गरीब था वो तो 10-15 साल में ही मर जाता था. ये हालत जो कि अब आपके 65-70 के पास पहुंचने वाली है, क्योंकि 70 साल में कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए लोग अब 30 साल के बदले 70 साल तक जीते हैं. परंतु द पॉइंट इज दैट एट इंडिपेंडेंस कहां से आप शुरू हो रहे हैं, किस गंद और कीचड़ में? व्हाट मड एंड फिल्थ वाज लेफ्ट बिहाइंड, फ्रॉम व्हिच आई थिंक अ ग्रेट एफर्ट वाज मेड to lift our society up. What are we doing now? We are now pushing our people back into that mud and filth, back into ignorance, into obscurantism, into disempowerment, into unfreedom, and most of all, into communal hatred for each other. Let us learn something from our national movement. Thank you so much.